کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کی آغا خان ہسپتال آمد، پولیس مقابلے میں زخمی SHO ادریس بنگش اور اہلکار کی عیادت کی۔ انسپکٹر ادریس اور زخمی جوانوں کے لیے نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا بھی انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کی آغا خان ہسپتال آمد، پولیس مقابلے میں زخمی SHO ادریس بنگش اور اہلکار کی عیادت کی۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے میں پہنچے تو دوبارہ ان کی مدبھیڑ ہوئی پولیس والوں سے، جس میں دونوں کے دونوں مارے گئے۔ ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ جو آفیسر تھے جو سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے میں کسی کام پہ، سرکاری کام سے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے کسی پرسنل دوست سے ملنے آئے تھے۔ وہاں پہ ان کی مدبھیڑ ہوئی کرمنل سے، جس میں ان کو گولی لگی۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، جوان مردی کا مظاہرہ کیا، اور اس نے نہ صرف اس کرمنل کو پکڑ لیا زخمی حالت میں، بلکہ اس کی نشاندہی پہ پھر ہم نے دوسرا کرمنل جو اس میں اس کے ساتھ انوالو تھا اس کو بھی پکڑ لیا۔ جو شروع میں ہوا کورنگی تھانے کے حدود میں، اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی گرفتار کریں گے، جس کی وجہ سے ایک شہری کی جان گئی۔ 104 سے زیادہ کرمنلز ہم نے مارے ہیں اس سال، اور تقریباً 998 قریب حالت میں گرفتار کیے ہیں۔ اگر ٹوٹل کرمنلز جو گرفتار ہیں وہ 8000 زیادہ ہیں۔ کراچی کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، شہر میں ڈکیتیاں ہو رہے ہیں، اعلیٰ حکام کہتے ہیں مزاحمت نہ کرو۔ مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی رہنما علامہ حسن ظفر نقوی برس پڑے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں محمد حماد کی اس رپورٹ میں۔ MWM کے کراچی کے حالات پر تحفظات کا اظہار۔ مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی رہنما علامہ حسن ظفر نقوی نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے حالات سدھرنے کے بجائے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ شہر تباہی اور بربادی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ شہر میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ اعلیٰ حکام کہتے ہیں مزاحمت نہ کرو۔ ہزاروں لوگ روزانہ لٹ رہے ہیں، FIR بھی نہیں کٹوا سکتے، اور انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ آپ مزاحمت نہ کریں، آپ موبائل دے دیں، آپ ڈاکو کو گھر میں گھسنے دیں، آپ کی بے حرمتی کرے کر لے دیں، بولے مت، بولیں گے تو مار دیں گے۔ تمہارا رشتہ دار ہے وہ، تمہارے پالتو ہے وہ، جو ہمیں لوٹ رہے ہیں سڑکوں پہ، گھروں میں، ہر جگہ لوٹ رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ کون ہے وہ؟ کوئی ہے اس شہر کا والی وارث؟ علامہ حسن ظفر نقوی بولے حکومت $2-4 کے چکر میں بھیک مانگ رہی ہے۔ ایک ملک فٹ بال کا ورلڈ کپ کراتا ہے اور اربوں ڈالر کما لیتا ہے۔ ہمارے ملک میں ٹرانسپورٹ اور ریلوے نظام تباہ ہیں۔ ایک ملک ایک فٹ بال کا ٹورنامنٹ کراتا ہے، $220 ارب لگا دیتا ہے، اور $400 اسے کما لیتا ہے۔ ہمارے ریزرو کہاں پہنچ گئے؟ 7 ارب یا $7.5 ارب آپ کو سے زیادہ آ گئے۔ یہ ہمارا ٹوٹل اثاثہ۔ وہ جو بلینز ڈالر کا قرضہ ہے وہ کس نے کھایا؟ یہ سب تو بے گناہ ہو گئے نا، عدالتوں نے بے گناہ کر دیا۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ 22 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے؟ پریس کانفرنس میں MWM کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ میں سیلاب کا پانی اب تک کھڑا ہے۔ حکمران صرف الزام تراشیاں کرتے ہیں، مہنگائی کا شور ہوتا ہے، حکومت صرف اپنے مقدمات ختم کرانے میں لگی ہے۔ MWM نے مطالبہ کیا ہمارے ساتھیوں کو رہا کیا جائے ورنہ ہم سڑ لیں گے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ رقص کرتے ہوئے منشیات کی تیاری کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ کلفٹن پولیس نے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزم نثار خٹک سے 420 گرام چرس بھی برآمد کی گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی میں ملوث نکلا اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ منشیات تیار کرتا یہ شخص رقص بھی کر رہا ہے، سرور میں ہے، اور ایسے میں اس کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو کراچی پولیس نے، کلفٹن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ منشیات کا سپلائر بتایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضلعی ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیوں کا نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں افسران کے تبادلوں کے نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کی درخواست کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے ضلعی ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں افسران کے تبادلوں کے نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ سید شکیل احمد نے ایڈمنسٹریٹر DMC ایسٹ کا چارج سنبھال لیا۔ میونسپل کمشنر اور دیگر نے محکمہ جات کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ DMC ایڈمنسٹریٹرز کا کہنا تھا کہ ضلع شرقی کی بہتری کے لیے ہر محکمہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔
नए एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट ने तारुफी इजलास मुनक्किद किया, जिससे खिताब में सैयद शकील अहमद का कहना था कि जिला शर्की की बेहतरी के लिए हर महकमा अपना किरदार अदा करे, टीम वर्क के जरिए जिला शर्की के मसाइल को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि बल्दियाती खिदमात को अहम इवेंट्स तक महदूद न रखा जाए, बल्कि जो काम रोजमर्रा किए जा सकते हैं इन्हें सर अंजाम देने के लिए महकमा जात अपना किरदार अदा करें। कोशिश ये की जाए करप्शन को रोकें, कम से कम करें, ख़त्म करें, और इसका जो रिलीफ है आवाम को मिलना चाहिए। वाटर बोर्ड का मसला, पानी का, सीवरेज का सीवरेज डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कराची के तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट में। मैं इसके लिए मैं इंशाल्लाह CM साहब से मिलूँगा, फिर गवर्नर साहब से ख़ास तौर पर मिलूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर साहब से मीटिंग है, इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा। म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान व दीगर महकमा जाती अफसरान ने इस मौके पर महकमा जात के हवाले से इन्हें ब्रीफिंग दी। यकीनन लाजमी सी बात है कि वो काम डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी के लिए, डिस्ट्रिक्ट की आवाम की बेहतरी के लिए किए जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये प्रायोरिटीज डिसाइड होने के बाद फिर उसके हिसाब से तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा हर महकमा जात से इजलास मुनक्किद करके कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से बरवेकार लाए जाएंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाया जाए, PTI रहनुमा अली जैदी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। कहा बल्दियाती इलेक्शन से 20 रोज़ कबल एडमिनिस्ट्रेटर की तब्दीली काबिल मजम्मत है। हमने उनकी तैनातियों पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी खत लिखा है। तफसीलात शोएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने MQM और पीपल्स पार्टी को फिर निशाने पर रख लिया। पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली जैदी का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन से कुछ दिन पहले जानबूझकर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जा रहे हैं। जिलाई एडमिनिस्ट्रेटर के साबका रिकॉर्ड से मुतालिक कौम सब कुछ जानती है। कराची में साफो शफाफ इलेक्शन कैसे मुमकिन होंगे? ये जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जा रहे हैं आजकल, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लग रहे हैं कराची में, ज़रा मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं। इनका ज़रा मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ, क्योंकि जिस जमात से लग रहे हैं वो तो शायद शर्मा रहे हैं इंट्रोडक्शन कराने से। PTI रहनुमा का कहना था कि मुल्की हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। हम बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। शादी हॉल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का फैसला इस मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने के मुतरादिफ है। शहर का हाल बुरा है, क्राइम आसमान पे पहुंची हुई है। यानी कि आप इस शहर का छोड़ें, हेल्थ को छोड़ें, तबाह, तालीम, एजुकेशन तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पहले हम कहते थे दुबई जाके देख लो, अब हम कहते हैं भाई दुबई मत जाओ, लाहौर ही जाके देख लो, कितना फर्क है कराची और लाहौर में। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अली जैदी का कहना था कि 7 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। बैड गवर्नेंस के बायस यहाँ लोग मर रहे हैं और लाकानूनियत का राज है। कैमरामैन सज्जाद अली, शोएब मुख्तार, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में रुकावटें डाली गईं तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। आदिल जमाली की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी का बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज की तैनाती का मुतालबा। इदारा नूर हक में रुकन असेंबली अब्दुल रशीद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिजुर नईमुर रहमान बोले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखेंगे सियासी बुनियादों पर सरकारी अफसरान की तरक्कियों को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए, क्योंकि मज़कूरा तकरीरियाँ सिंध हुकूमत की जूनियर पार्टनर्स की सिफारिश पर हुई हैं। आज हम इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं तफसीलात के साथ। अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और साथ साथ सड़कों पर एहतजाज भी करेंगे। अपनी मर्जी के अफसरान का तकर्रुर, अपने मर्जी के पुलिस अफसरान का तकर्रुर करना और यूसीज को बांट लेना कि इतनी यूसीज इस पुलिस वाले के सुपुर्द हैं, इस अफसर के सुपुर्द हैं, अपनी मर्जी के आरोज लगाने के लिए सारे काम करना। और अब एक जूनियर पार्टनर MQM एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई, तो अब ये दोनों मिलकर ये चाह रहे हैं कि लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाएं और आबादियों को तकसीम करें ताकि डिवाइडेड मैंडेट आए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत में 15 जनवरी को होने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात के सामने रुकावटें डाली गईं तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। इससे अवाम को ख़तरा नहीं है, उसका रास्ता रोकने की अगर लोग कोशिश करेंगे तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल भी होगा। इसलिए हम ये समझते हैं इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए, जो जिसको वोट देना चाहता है उसकी आज़ादी होनी चाहिए, तकर्रुर होना चाहिए रेंजर्स का और फौज का तमाम पोलिंग स्टेशंस पर, स्टैटिक पोजीशन पर। ये जो होता है ना कि वो मूव करती रहेंगी और जब चाहेंगे हम बुला लेंगे, तो कौन चाहेगा कि बुला लें जब सारे आरोजी
अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड पे लगाए जा रहे हैं। हाफिज नईम रहमान के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन के दौरान कराची स्टेशन के बाहर फौज को मुकर्रर किया जाए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21 न्यूज़। शहर में बल्दियाती इंतखाबात का मेला सज गया। तमाम ही जमातों के नुमाइंदे मैदान अमल में मौजूद हैं। इसी सिलसिले में जमात इस्लामी की जानिब से गुलबर्ग टाउन UC 3 से मुफ्ती नोमान वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला है वो एक बार फिर चल पड़ा है। मैदान सज चुका है। तमाम ही जो जमातों के नुमाइंदगान हैं वो मैदान अमल के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। इसी सिलसिले में जमात इस्लामी की भी तैयारियां मुकम्मल हैं और जमात इस्लामी ने तमाम नुमाइंदों को मैदान अमल के अंदर उतार दिया है। हमारे साथ गुलबर्ग टाउन UC 3 से वाइस चेयरमैन जो के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मौजूद हैं, नोमान साहब। सर, आप मुझे बताइएगा कि आपके इलाके में कौन कौन से, आपकी UC में कौन कौन से इलाके मौजूद हैं और कितने वोटर्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करूँ कि UC 3 गुलबर्ग टाउन, इसमें 3 इलाकों पर मुश्तमिल UC है ये। और ये जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उस हवाले से इसमें ब्लॉक 16 कंप्लीट है, ब्लॉक 21 हमारा कंप्लीट, और इसी तरह ब्लॉक 15 का कुछ एरिया हमारे साथ शामिल है। फेडरल भी एरिया? जी, फेडरल भी एरिया का ब्लॉक 15, ब्लॉक 16 कंप्लीट है, 15 कुछ हिस्सा है, और 21 फेडरल एरिया हमारा कंप्लीट शामिल है ये। और वोटर्स? जी बिल्कुल, मुफ्ती नोमान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इलाके के जो मसाइल हैं उनके ऊपर रोशनी भी डाल रहे थे, और साथ ही उनका कहना था कि अगर वो जीत जाते हैं तो जो एजुकेशन का सिस्टम है इस UC के अंदर, क्योंकि स्कूलों की जो हालत ज़ार है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। साथ ही साथ जो पार्क के जो मसाइल हैं, पार्कों में जो मसाइल हैं, चाहे वो जॉगिंग ट्रैक का हो या फिर लाइट्स का हो या फिर उधर जो ग्रास है उसका हो, तो उस मसाइल को भी उस हल किया जाएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के ज़िले तालीमी अफसरान के तबादले कर दिए हैं। DOs की हायर सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर तैनातियाँ कर दी गई हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 8 ज़िले तालीमी अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। 8 DOs को जो हायर सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर तैनातियाँ कर दी गई। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन DOs को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तैनात किया गया है उनमें अर्जन, शकर लाल, गुलाम मुस्तफ़ा, शफी मोहम्मद, मज़हर अली सरकी, मोहम्मद इस्माइल बुर्डो और जहांगीर बंगलानी शामिल है। जी बहुत शुक्रिया। महमूदाबाद नाला इंतज़ामिया की जानिब से लावारिस छोड़ दिया गया। नाला एक बार फिर कचरे से लबालब भर गया, जिसके बायस इलाका मकीन भी परेशानी का शिकार हैं। फातिमा सलीम की रिपोर्ट। इंतजामिया की गफलत के बायस महमूदाबाद नाला कचरा कुंडी की अक्कासी करने लगा। कचरे के ढेर ने नाले की रवानी को मुतासिर कर रखा है, जबकि रिहायशी आने वाली बारिशों के पेश नजर परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं कि इलाके में कचरा फेंकने का कोई इंतजाम नहीं, जिसके बायस लोग कचरा नाले में ही फेंक देते हैं। आवाम कहाँ फेंकेगी, कोई उसका बल्दियाती निज़ाम है नहीं। अब ये देखें सामने कचरा सारा पड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा कचरा? कोई गाड़ियाँ हैं नहीं, कोई डस्टबिन पड़े हुए नहीं है। बड़े वाले जब मोहल्ले वाले कचरा ला के बाहर गलियों से बाहर फेंकेंगे, एरिया सफाई वाले उठा के यहाँ फेंक देते हैं, उनको कोई सहूलत मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने भी सड़क की तामीर के लिए मलबा नाले के अतराफ में फेंक दिया है। ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हो रही है। नाले में कचरा डालते रहते हैं, फिर ये रोड का बड़ी सूरत हाल ख़राब है। इस रोड के ऊपर इतना पूरी बाइकें मैंने खुद डूबती भी देखी हैं। यहाँ पर ये मलबा डालते हैं, फिर उठा के ले जाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मलबा फेंकते हैं, फिर उठा के ले जाते हैं। जिस यहाँ रोड 2 साल के अंदर रोड एक दफ़ा नहीं डाला, मलबा 3 दफ़ा डल चुका है। होती है बच्चों को भी, तमाम अफराद को। और प्लस ये नाला जो है, नाले की कोई सफाई नहीं होती है। और बच्चों के लिए खेलने के लिए जो पार्क था ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट माफिया का राज हो गया है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। रिहायशियों ने भी इंतजामिया से अपील की है कि इस लावारिस नाले और सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि यहाँ के रिहायशियों की तकलीफों में किसी हद तक के। कैमरामैन हसनैन के साथ फातिमा सलीम, सिटी 21। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 23 इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क पर सीवरेज का पानी महीनों से जमा है। फैक्ट्री में आने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। टूटी फूटी सड़क, सीवरेज का पानी, ये है कोरंगी सेक्टर 23 इंडस्ट्रियल एरिया, जिसकी दोनों सड़कें तबाह हाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और सीवरेज का पानी जमा होने से वहां गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और इधर खड्डे पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। मतलब कि बाइक वाले बेचारे गिर जाते हैं। कई दफ़ा रक्शे गिरे हैं यहाँ पे, सुजुकी हैं, उल्टी हैं यहाँ पे, लेकिन आज तक कभी किसी ने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया। अगला के इंडस्ट्री एरिया है।
इलाका मकीनों के अलावा फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए भी इस सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। सामने बिल्कुल मेरी फैक्ट्री है, सही है, प्लॉट नंबर 41। हम बहुत परेशान हैं यहाँ से, और आए दिन गाड़ियाँ यहाँ पर जो है ना वो फंस जाती हैं, आए दिन बाइक वाले गिरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर, और काफ़ी टाइम कंप्लेन भी कर दी है, आते हैं रिजोल्व करते हैं वो लोग, नहीं उसके बाद दोबारा वही प्रॉब्लम रहता है। इंडस्ट्रियल एरिया की इस सड़क से गुजरने वाले शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन अहमद के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। सर्दियों के आते ही शहरी रज़ाइयाँ बनाने वालों की दुकानों का रुख करने लगे। रज़ाई कितने में तैयार हो रही है, बताएंगी शुमाला न्याजी। सर्दियों के आते ही शहरी गर्म लिहाफ खरीदने बाजारों का रुख कर लेते हैं। एम रफीक कार्टन मर्चेंट के मालिक का कहना था कि एक रजाई 4 किलो रुई में तैयार हो जाता है। रजाई की मजदूरी 600 रुपए है, जबकि रुई 500 तक 600 रुपए किलो दस्तियाब है। गद्दे का जो ना 400 से 500 तक खर्चा आता, रिपेयरिंग का, धुनाई का, मशीन का, सिलाई का, और रजाई का तो 500, 600, 800 जैसा साइज होता है उसके हिसाब से होती है। कम से कम रजाई की मजदूरी ना 600 रुपए। खुनकी बढ़ते ही शहरी न सिर्फ नई रजाइयों की खरीदारी में मसरूफ हैं, बल्कि पुरानी रजाइयों की सफाई के लिए भी दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि सर्दियों में कंबल के मुकाबले रजाई का इस्तेमाल ज्यादा पसंद है, जबकि बच्चे भी रजाई को शौक से इस्तेमाल करते हैं। लोगों के कंफर्ट की बात है, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कंबलों को, कुछ लोग रजाई को प्रेफर करते हैं। मैं इटसेल्फ खुद रजाई को प्रेफर करता हूँ, और ये तो अपनी अपनी यूज़ की बात है, लेकिन ये है कि आजकल की जो जनरेशन है मेरा ख्याल है वो ज़्यादातर ब्लैंकेट्स को प्रेफर करती है। मैं रज़ाई रिन्यू कराने आई हूँ, और मैं भी रज़ाई उड़ती हूँ, और मेरा जो फेवरेट कलर है ना रज़ाई में तो वो है रेड कलर। शहरियों का मानना है कि दौर कोई सा भी हो, रिवायती तर्ज जिंदगी हमेशा किसी न किसी में राइज रहेगी। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा शुमाला नियाजी, सिटी 21। कराची के इलाके नाजिमाबाद पापोश मोबाइल मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गई हैं। दुकानदारों ने हुकूमती नाकिस पॉलिसियों को कारोबार में मंदी का सबब करार दे दिया है। कहते हैं कि एलसीज ना खुलने, टैक्स की भरमार और महंगाई की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई के सबब मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त न होने के बराबर रह गई। गिरती सेल ने पापोश मोबाइल मार्केट के दुकानदारों को परेशान कर दिया। पापोश मोबाइल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ मुनीर कहते हैं कि महंगाई, एलसीज के ना खुलने और टैक्सेस की भरमार ने कारोबार को उनके लिए इम्तहान बना दिया है। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट ने अभी ये पॉलिसी ऐलान की है कि आप जो है अपनी दुकानें जो है 8 बजे या 8:30 बजे के करीब बंद कर दें। वो हम लोगों के लिए वैसे ही मुश्किल हुआ है, घर का कमाना और उसमें अखराजात जो हैं इतने बढ़ चुके हैं कि हम अपने जो है बाल बच्चों का पेट पालें या इसके अलावा कि हम अपना कारोबार करें। वैसे ही कारोबार नहीं है बिल्कुल भी किसी भी किस्म का यहाँ पर, तो इसलिए हमें बड़ी परेशानी है इस मामले में। दुकानदार कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त पहले ही महंगाई की वजह से कम हो गई है। हुकूमत का 8 बजे तक मार्केट बंद करने का फैसला कारोबार को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगा। तो कारोबार की समझिए पूरी MC हुई है, हमारी मिट्टी बली हुई है। जो दिन में पहले हम लोग 5-6 मोबाइल बेचते थे, इस टाइम अभी एक भी बेचना हमारे भारी पड़ रहा है। जो गवर्नमेंट की वजह से जो टैक्स लगा है वो लगा है, ऐसी बंद हो गई है, इसके हवाले बराबर है। और उसके अलावा ये जो अभी 8 बजे का जो कह रहे हैं ये बिल्कुल भी गलत है। इनका तरीका कारोबार वैसे ही नहीं है, जो टाइम है वही होना चाहिए। ताजरों और हुकूमत का मुतालबा है कि हुकूमत माशी इस्तेकाम और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जामे और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करे। कैमरामैन शाहजेब के हम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। ऑल माहीगीर एसोसिएशन के मेंबर मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि माहीगीर टैक्स देते हैं, इसके बावजूद तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता। बलोचिस्तान में जुल्म बढ़ता जा रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। अदम तहफ़्फ़ुज़ पर माहीगीर फट पड़े। माहीगीरों ने कराची फिश हार्बर पर बलूचिस्तान में होने वाली फायरिंग के वाक़यात और दीगर मसाइल के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मेंबर माहीगीर एसोसिएशन मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि समंदर में मौजूद सिक्योरिटी एजेंसीज ने अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया तो 25 दिसंबर से बलूचिस्तान का माल यहाँ नहीं आने देंगे। हमारे लांचों के ऊपर फायरिंग किया मगर कोई पूछने वाला नहीं है। जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ है जो बाहर समंदर में काम करती है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। तो हमारा एहतजाज ये है कि 25 तारीख पर हम बलूचिस्तान का माल आने इधर नहीं देंगे। जनरल सेक्रेटरी हार्बर एसोसिएशन अमानुल्लाह बोले, समंदर में तसादुम का खदशा है, सिक्योरिटी के इदारे कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। वहाँ से प्राइवेट लोग, मौलाना इज़्ज़तुर्रहमान या जितने भी लोग हैं वो गुंडों की शक्ल में असलहा लहराते हुए आ रहे हैं। तो क्या ये कराची के लोग लाइसेंस याफ्ता या गैर लाइसेंस याफ्ता असलहा नहीं रख सकते? ये अपने साथ असलहा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं ले जाएंगे तो समंदरों में तसादुम
होने का खदशा है। तो इसी खदशे को रोकने के लिए कानून को हाथ में लेने वालों को उसको सज़ा होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। मुजाहिरे के दौरान माहीगीरों ने हाथों में बैनर थाम कर मुतालबा किया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख का कहना है कि जज का किरदार बिला खौफ, निडर और बहादुरी के साथ होना चाहिए। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का कहना था कि बार के ताउन के बगैर इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकती। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अदालत आलिया में जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख समेत हाई कोर्ट के जजेस एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज एच शाह, कराची बार एसोसिएशन के सदर इशफाक गलाल, सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सलीम मंगरियो और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख का कहना था कि मुआशरे में इंसाफ की फरहमी के लिए सरकारी महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और इन महकमों में करप्शन का खात्मा जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरियों में शफाफियत के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। बेंच और बार के ताउन के बगैर इंसाफ की फरहमी मुमकिन नहीं। No doubt in my mind that his very successful career, first as a lawyer and then as a judge, apart from his own hard work, is also due to the prayers of the people he helped on merits. जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर ने गुफ्तगू करते हुए साथी जजेस और वकला का शुक्रिया अदा किया। Retirement is one of the milestones of life, and the important thing is what a person achieved during his tenure, leaving behind his pleasant and bitter memories. और कुछ आगे मैं कहूँगा तो पहले तो ये कि आप सब भाइयों का प्यार देखिए, मुझे बहुत खुशी है और मैं कह रहा हूँ कि वाकई मैंने कोई ऐसा काम किया था। 1 जनवरी 1961 को लाड़काना में पैदा होने वाले जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर 27 अक्टूबर 1991 को हाई कोर्ट में बहैसियत वकील, जबकि 6 अक्टूबर 2008 को सुप्रीम कोर्ट के वकील इनरोल्ड हुए। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर 27 जून दोबारा को हाई कोर्ट के जज बने। अब आपको बताएं कि सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जानिब से थर फ्लड रिलीफ रैली निकालने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। रैली में नामवर रेसर्स एक्शन में दिखाई देंगे। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नुमान सरंजाम ने बताया कि थर फ्लड रिलीफ रैली 5 से 8 जनवरी तक निकाली जाएगी, जिसमें मुल्क के नामवर रेसर्स शिरकत करेंगे। 5 to 8 जनवरी हमारी डेट्स हैं जिस पे ये रैली ऑर्गेनाइज होगी। 5 से 8 जनवरी को यूजुअल होगी रेस, क्वालिफाइंग राउंड होगा, स्टॉक क्लास की रेस होगी, प्रोडक्शन क्लास की रेस होगी, उससे पहले रेकी होती है, टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है, जो एक रेस का एक फार्मूला बना हुआ है। और नेशनल मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिसको रेहान साहब हेड करते हैं, ये लोग इसका ऑर्गेनाइज कराएंगे। नुमान सरंजाम का डूब चुके हैं। फ्लड रिलीफ के लिए हम ये रैली का इनकाद कर रहे हैं। रैली के जरिए सैलाब जदगान के लिए फंड इकट्ठा होंगे। रेसर्स प्राइज मनी में से 50% रिलीफ फंड में देंगे। रेस हम जरूर करेंगे, लेकिन इसको हम इस तरीके से करेंगे कि इसमें हम फ्लड रिलीफ के लिए काम करेंगे और उसमें हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे, हम उसमें डोनेट भी करेंगे। और इसमें जो हमारी प्रोसीड्स इकट्ठी हो रही हैं, जो कि प्राइज़ मनी के तौर पे होती हैं, उसमें से 50% तक ड्राइवर्स, बल्कि कुछ ड्राइवर्स तो उससे ज़्यादा भी डोनेट करने के लिए तैयार हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेके फिर हमने इस रेस के ऑर्गेनाइज करने के लिए मीटिंग्स की, डिसाइड किया, वेन्यू का चक्कर लगाया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और सिंध गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। थर फ्लड रिलीफ रैली का रेसिंग ट्रैक 107 किलोमीटर पर मुहित है, जहां मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में 80 के लगभग रेसर शिरकत करेंगे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21। स्टेट बैंक ने माली साल 2021-22 में मुल्की मईशत की रिपोर्ट जारी कर दी है। माली साल 2022 में पाकिस्तान की मईशत ने मुसलसल दूसरे साल 6% की हकीकी GDP हासिल की। स्टेट बैंक के मुताबिक इस अरसे में ज़राअत और सनत के शोबों में नुमायाँ इजाफा देखने में आया। स्टेट बैंक ने माली साल 2021-22 में मुल्की मईशत की रिपोर्ट जारी कर दी है। माली साल 2022 में पाकिस्तान की मईशत ने मुसलसल दूसरे साल 6% की हकीकी GDP नमो हासिल की। स्टेट बैंक के मुताबिक इस अरसे में ज़राअत और सनत के शोबों में नुमायाँ इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए 2022 मुश्किलात का साल रहा। माहिरीन की जानिब से
नए बुलंद तरीन रिकॉर्ड की पेशगोइयां रद्द हो गईं। मार्केट में साल के आगाज़ से अख्ताम तक 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। सरमायाकारों ने 2022 को भारी साल करार दिया है। हबीब खान की रिपोर्ट। साल 2022 के आगाज से कबल माहिरीन स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने की पेशगोइयां करते रहे, मगर 2022 स्टॉक मार्केट के लिए दबाव का साल साबित हुआ। 3 जनवरी को साल के पहले कारोबारी रोज मार्केट ने 44,582 पॉइंट से आगाज किया और साल के इख्तिताम पर 40,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सकी। अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत तब्दील होते ही मार्केट में तेजी देखने में आई और 15 अप्रैल को साल की बुलंद तरीन सतह 46,601 पॉइंट्स की सतह पर रिकॉर्ड हुई। इम्पोर्ट पाबंदियों और दीगर मौसमी चैलेंजेस के सबब मार्केट 21 जुलाई को 39,831 की सतह पर रिकॉर्ड हुई। CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज एहसन मेहंदी का कहना है कि रवा साल का आगाज बेहतरीन था, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मार्केट परफॉर्म नहीं कर सकी। डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा और साथ ही शरह सूद का 16% तक पहुंचना स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज रहा। देखिए, मार्केट जो है इस साल तकरीबन 7 से 8% जो है वो नेगेटिव जो है उसकी परफॉर्मेंस है और उसकी मेजर जो वजह है वो ये है कि हमने रुपये को जो है अगेंस्ट डॉलर जो है वो मैसिवली इस ईयर 30% तक जो है वो गिरते हुए देखा। वो गिरने की वजह से जो है वो हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आई है। जब इन्फ्लेशन आई तो पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है वो 16% तक इसी साल जो है वो कर दिया गया। तो आई थिंक कि ये जो चढ़ाव है इंटरेस्ट रेट का, ये लोकल भी फिनोमेना है और ग्लोबल फिनोमेना भी। स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि साल 2022 के दौरान सरमायाकारों को भारी नुकसान रहा। साल के आगाज पर उम्मीद थी कि मार्केट बेहतरीन रहेगी, मगर आलमी सतह पर मौसमी चैलेंजेस और मुल्की हालात के बायस सूरत हाल खराब रही। 2022 के स्टार्ट में मार्केट अच्छी लगी थी, रिजर्व्स हमारे 16 बिलियन पे थे, एक्सपोर्ट हो रही थी, कोरोना डाउन हो गया था, पॉलिटिकल सिचुएशन इस हद तक नहीं थी ख़राब, सही थी, नॉर्मल चल रही थी, इमरान खान की हुकूमत थी, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल रहे थे, IMF से थोड़ा अपना चल रहा था, मामला उसके चल रहे थे, रशिया की तरफ वो जा रहा था, थोड़ा मुल्क के लिए बेहतर होता है। क्यों? हम इम्पोर्टर हैं, मेनली हम ऑयल, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हमें वहाँ जाना है, बट थोड़ा प्रेशराइज हुए हम, इसकी वजह से नहीं कर सके। देखिए, ये साल का जो आगाज़ तो मुस्बत हुआ था, लेकिन आपने देखा कि इसके बाद जो फ्लड आया तो उसमें जो पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टर्ब हो गई, इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन उसमें काफ़ी इजाफा हो गया, US डॉलर के प्राइसेस है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया। तो ये सब जो है फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये साल जो अच्छा जाएगा, 53,000 और 54,000 की जब बात कर रहे हैं, तो ये इसकी बुनियादी वजह जो है आप देखें इंटरेस्ट रेट, US डॉलर और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी है। माहिरीन का कहना है कि आइंदा साल भी मजीद चैलेंजेस का सामना रहेगा। IMF की शराइत और मिनी बजट के सबब मार्केट में मजीद दबाव बना रहने का इम्कान है। नए इंतखाबात और नई हुकूमत की तब्दीली की सूरत में ही बह सकती है। कैमरामैन हैदर रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।